کرتے ہیں۔ بادشاہت کی اصل طاقت اس کی عمارتوں میں نہیں بلکہ اس کے لوگوں میں ہوتی ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ جس طرح ہم آپ کو پہلے بھی بہت سی خوبصورت، سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سنا چکے ہیں، اور ان کہانیوں سے آپ نے نہ صرف لطف اٹھایا ہوگا بلکہ بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، اسی طرح آج ہم ایک بار پھر آپ کے لیے ایک نہایت منفرد، دلچسپ اور دل کو چھو لینے والی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو صرف ایک پرانا قصہ نہیں بلکہ اس میں آج کے زمانے کی بھی ایک جھلک چھپی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ صرف ایک کہانی لگے گی اور کچھ لوگوں کو اس کہانی میں اپنا آج نظر آئے گا۔ تو پیارے بچوں، اپنے دلوں کو تیار کر لیجئے، کیونکہ آج ہم سنانے جا رہے ہیں قصہ 3 بادشاہوں کا۔ ایک ایسی کہانی جو ہمیں سکھائے گی کہ اصل عظیم الشان سلطنت کا راز کن امور میں ہے۔ صدیوں پہلے 3 عظیم سلطنتیں ہوا کرتی تھیں۔ اور ان سلطنتوں کے 3 بادشاہ جو طاقت، دولت اور شان و شوکت میں بے مثال تھے، مگر ایک سوال ان تینوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا تھا۔ آخر سب سے عظیم بادشاہ کون ہے؟ پیارے بچوں، ان تینوں بادشاہوں میں سے پہلا بادشاہ بہت طاقتور تھا۔ اس کی فوج بہت بڑی تھی اور اس کی سلطنت دور دور تک اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھی۔ لیکن اس بادشاہ کو ایک چیز کا بہت زیادہ شوق تھا، اور وہ تھا نئی نئی تعمیرات کروانا۔ وہ ہمیشہ بڑے بڑے محل، اونچی عمارتیں، وسیع سڑکیں اور عظیم پل بنوانے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ایک عظیم سلطنت کی پہچان اس کی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں۔ دوسرا بادشاہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ اسے خوبصورتی سے بے حد محبت تھی۔ اس کو پھول، باغات، سبز میدان اور رنگ برنگی فوارے بہت پسند تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت دنیا کی سب سے خوبصورت سلطنت بن جائے، جہاں ہر طرف خوشبو ہو اور ہر راستہ جنت کا منظر پیش کرے۔ مگر تیسرا بادشاہ ان دونوں سے مختلف سوچ رکھتا تھا۔ وہ اپنی حکومت کے کام کاج کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کے مسائل بھی خود سنتا تھا۔ کوئی غریب اس کے دربار سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ کوئی مظلوم اس کی ہوتی ہوئی انصاف سے محروم نہیں رہتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، اگر لوگ خوشحال نہ ہوں تو سلطنت کی شان و شوکت بے معنی ہے۔ پیارے بچوں، تینوں بادشاہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کی سلطنتوں کا دورہ کرتے رہتے تھے۔ وہ آپس میں ملاقاتیں کرتے، اپنے تجربات بانٹتے اور سلطنتوں کے انتظام، عوام کی بھلائی اور حکومتی معاملات پر ایک دوسرے سے مشورے کیا کرتے تھے۔ ایک دن تینوں بادشاہ ایک عظیم شاہی ہال میں جمع ہوئے۔ پہلے بادشاہ نے غرور بھرے لہجے میں کہا، ہم تینوں عظیم ہیں، مگر سب سے بہترین کون ہے؟ دوسرا بادشاہ مسکرایا اور بولا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تیسرے بادشاہ نے خاموشی سے دونوں کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں کون عظیم الشان بادشاہت کا مالک ہے۔ یہ بات سنتے ہی پہلے بادشاہ نے اعلان کیا، 1 سال ہر بادشاہ اپنی سلطنت کو دنیا کی بہترین سلطنت بنائے گا۔ دوسرے بادشاہ نے کہا، اور 1 سال بعد دنیا کے 3 عظیم ججز فیصلہ کریں گے۔ تیسرے بادشاہ نے مسکرا کر کہا، قبول ہے۔ اور یوں 1 سال کی آزمائش شروع ہو گئی۔ پہلے بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ پوری سلطنت بدل دی جائے۔ پرانے گھر گرائے گئے، نئی عمارتیں تعمیر ہونے لگی، بڑے بڑے پل بننے لگے، سڑکیں توڑی جانے لگی۔ دن رات صرف تعمیر کا شور سنائی دیتا تھا۔ مزدور کم پڑنے لگے، عوام کو زبردستی کام پر لگا دیا گیا۔ لوگ تھکنے لگے، کمزور ہونے لگے، مگر بادشاہ کی خواہش ختم نہ ہوئی۔ وہ چیختا، مجھے دنیا کی سب سے جدید سلطنت چاہیے۔
वक्त गुजरता गया। सल्तनत तो खूबसूरत बनती गई, मगर लोग टूटते गए। दूसरे बादशाह को फूलों और बागात का जुनून था। उसने हुक्म दिया कि पूरी सल्तनत को जन्नत बना दिया जाए। हर सड़क पर फूल, हर दीवार पर सब्जा, हर तरफ बागात और फव्वारे। सल्तनत वाकई जन्नत लगने लगी। मगर यहां भी वही मसला। इस खूबसूरती के पीछे आवाम भूखी थी। कमजोर लोग दिन रात काम करते रहे, बच्चे भूख से निढाल थे और लोगों के चेहरों से खुशी खत्म हो चुकी थी। फिर बारी आई तीसरे बादशाह की। उसके वजीर हैरान थे, क्योंकि ना वो नई इमारतें बनवा रहा था, ना बागात। वजीर ने पूछा, हजूर, आप अपनी सल्तनत को तब्दील क्यों नहीं कर रहे? बादशाह ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैं इमारतें नहीं, लोग तामीर करना चाहता हूं। और फिर उसने खजाने अवाम पर खर्च करना शुरू कर दिए। भूखों को खाना मिला, बीमारों का इलाज हुआ, बच्चों को तालीम मिली, लोगों को इंसाफ मिला। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता लोगों के चेहरों पर खुशी वापस आने लगी। बाजार आबाद होने लगे, बच्चे हंसने लगे, घर रोशन होने लगे। एक साल गुजर गया और फैसला करने का वक्त आ पहुंचा। प्यारे बच्चों, अब आता है कहानी में दिलचस्प मरहला। तीनों बादशाहों ने फैसला किया कि मुकाबले के जज अपने मुल्कों से नहीं होंगे, ताकि इंसाफ पर कोई शक न रहे। इसके लिए गैर जानिबदार और गैर मुल्की जजेस को बुलाया जाएगा। सबसे पहले एक मुशीर को बर्रे सगीर पाको हिंद भेजा गया। फिर बर्रे सगीर अफ्रीका और यूरोप की मुख्तलिफ सल्तनतों से काबिल और तजर्बाकार बादशाहों को जज बनने की दावत दी गई। My Lord Chief Judge, an urgent summons from the Northern Keep. Leave it with me. An urgent summons, Chief Judge. Hand it to me. We shall review it. इन तीन मुंतखब अफराद को बाकायदा दावतनामे भेजे गए। खुशकिस्मती से इन ममालिक के नुमाइंदों ने ये दावत कबूल कर ली और यूं एक गैर जानिबदार और मोतबर जजेस का पैनल तैयार हो गया। जब तीनों जजेस एक जगह जमा हुए तो वो एक दूसरे से बातें करने लगे। एक जज ने हैरानी से पूछा, क्या आपको मालूम है कि हमें किस मामले का फैसला करना है? दूसरा जज भी कुछ उलझन में था और उसने जवाब दिया, नहीं, हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि एक बहुत अहम फैसला है, मगर तफसील नहीं दी गई। तीनों जजेस एक दूसरे की तरफ देखते हुए हैरत और तजस्सुस के आलम में आगे बढ़े, लेकिन कोई भी पूरी बात नहीं जानता था। जब वो सुल्तान के महल के करीब पहुंचे तो वहां का मंजर बहुत ही शानदार था। हर तरफ प्रोटोकॉल था, फौजी दस्ते कतारों में खड़े थे, दरबारी और वजीर सब एहतराम में झुके हुए थे। जैसे ही जजेस दाखिल हुए, पूरे एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। फिर उन्हें तीनों बादशाहों के दरबार में पेश किया गया, जहां वो अहम फैसले के लिए मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ जजेस का इस्तकबाल है। जैसे ही जजेस को असल मकसद बताया गया कि उन्हें फैसला करना है कि तीनों बादशाहों में से सबसे अजीम शान सल्तनत का मालिक कौन है, तो वो वाकई हैरान रह गए। इतना बड़ा और हसास फैसला उनके जिम्मे आ गया था। फिर शाही दरबार में अगला मरहला शुरू हुआ। सबसे पहले बादशाह की बारी आई, जिसे ताकत वाला बादशाह कहा जाता था। दुनिया के 3 अजीम जजेस अपनी शाही सवारियों पर सल्तनतों का जायजा लेने निकले। वो पहले बादशाह की सल्तनत पहुंचे। वहां बड़ी बड़ी इमारतें थीं, शानदार पुल थे, अजीम सड़कें थीं। एक जज ने हैरत से कहा, वाकई ये सल्तनत बहुत शानदार है। मगर दूसरे जज की नजर अवाम पर गई। लोग कमजोर थे, बच्चे भूखे थे, चेहरे मुरझाए हुए थे। और फिर उसने आहिस्ता से कहा, मगर यहां लोग खुश नहीं हैं। फिर जजेस दूसरी सल्तनत पहुंचे। वहां हर तरफ फूल ही फूल थे। ऐसा लगता था जैसे जमीन पर जन्नत उतर आई हो। तो दूसरे बादशाह ने उनका निहायत शानदार इस्तकबाल किया। उनके लिए सोने और चांदी से सजी हुई एक आलीशान बग्घी तैयार की गई।
जजेस बग्घी में सवार होकर बेनजीर मुमलिकत के दौरे पर निकल पड़े। जहां जहां से वो गुजरते वहां हैरत अंगेज मनाजिर उनकी आंखों के सामने आते जाते। हर गली, हर मोहल्ला, हर घर और हर दीवार सब्जे से ढकी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी सल्तनत एक अजीम बाग में तब्दील हो चुकी हो। हर तरफ रंग बिरंगे फूल, बुलंद दरख्त, खूबसूरत बागीचे और ठंडे पानी के फव्वारे बह रहे थे। एक जज हैरत से बोला, ये सल्तनत नहीं, जन्नत का कोई टुकड़ा मालूम होती है। मगर जब उन्होंने अवाम को देखा तो हर चेहरा थका हुआ था। लोग खामोश थे, कमजोर थे और एक जज ने अफसोस से कहा, यहां खूबसूरती तो है मगर जिंदगी नहीं। तब दूसरे जज ने मुस्कुराकर निहायत खूबसूरत अंदाज में कहा, वो बादशाह अजीम नहीं होता जो सिर्फ महल्लात सजाए, बल्कि अजीम वो होता है जो अपनी पूरी सल्तनत को खुशहाल और खूबसूरत बना दे। वो तीसरे बादशाह की सल्तनत में दाखिल हुए। ये सल्तनत पहली नजर में आम सी लग रही थी। इमारतें वही पुरानी थी, सड़कें भी वैसी ही थीं, मगर कुछ मुख्तलिफ था, बहुत मुख्तलिफ। लोग खुश थे, बच्चे हंस रहे थे, बाजारों में रौनक थी। लोग अपने बादशाह को देखकर खुशी से हाथ हिला रहे थे, उन पर फूल निछावर कर रहे थे। हर तरफ मोहब्बत थी, जिंदगी थी और सुकून था। तीनों जजेस एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरत भी थी और खुशी भी। तब एक जज ने आहिस्ता से कहा, यहां इमारतें नहीं, दिल आबाद हैं। इस अजीम बादशाह ने अपने लोगों के दिलों में जगह बना ली। उसकी आमद पर रियाया खौफ से नहीं, मोहब्बत से बाहर निकल आई। उसके गुजरने पर तलवारें नहीं, दुआएं बुलंद हो गईं। बस फिर क्या था, जजेस यकजबान होकर बोले, आज हम तीनों जजेस मुकम्मल इत्तेफाक के साथ ये ऐलान करते हैं कि इस अजीम मुकाबले का फातिह तीसरा बादशाह है, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी सल्तनत ही को नहीं संवारा, बल्कि अपनी कौम की जिंदगियों को ही बदल डाला है। सबक। प्यारे बच्चों, जब तीनों जजेस ने तीनों सल्तनतों का जायजा मुकम्मल किया तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें भी देखीं, खूबसूरत बागात भी देखे, मगर जो चीज उनके दिलों को सबसे ज्यादा मुतासिर कर गई वो थी तीसरे बादशाह की अपनी आवाम से मोहब्बत। क्योंकि उस बादशाह ने महलों से ज्यादा इंसानों को अहमियत दी थी। उसने सड़कों से पहले लोगों के चेहरों पर खुशी तामीर की थी। और प्यारे बच्चों, आज के जमाने में भी एक अच्छा हुक्मरान वही होता है जो सिर्फ बड़े बड़े मंसूबे ना बनाए, बल्कि अपने लोगों के दिल जीते, जो भूखे को खाना ना दे, मजलूम को इंसाफ ना दे और गरीब को इज्जत ना दे। वो कभी अजीम तो क्या, बादशाहत के लायक नहीं हो सकता। क्योंकि अगर अवाम खुश ना हो तो बड़ी बड़ी इमारतें भी बेमानी और बागात बेवक्त हो जाते हैं। याद रखें प्यारे बच्चों, असल ताकत फौजों में नहीं, असल अजमत जागीरों में नहीं, बल्कि अपने लोगों की खुशियों में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।